I got married at the age of 28, had a kid a little later, but by about 31, 32, I had started to realize कि यार मेरी जिंदगी का यही मकसद है क्या? I felt a little bit trapped. This is not what I want to do in my life. To be not even a cog in a wheel, but a cog in a cog. I mean, multinational में तो इतने लोग होते हैं और you don't even know. Johnson and Johnson में, for example, there were 32 regional sales managers. I was one of those 32. भी क्या औकात है यार उस टाइम पे? सो जब ये सोचना शुरू किया पर सॉल्यूशन ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था. Then at the age of 35, I was laid up with a heart attack. And I spent 10 days in the hospital and another 3 weeks recuperating at home. ये जो मेरा 1 महीने का रिफ्लेक्शन पीरियड था, वो रिफ्लेक्शन पीरियड आई थिंक वाज माय बिगेस्ट गिफ्ट दैट आई हैड गॉट. बिकॉज उस टाइम पे मैंने काफी सोचना शुरू किया कि यार जिंदगी में चाहता क्या हूं, करना क्या है, क्यों करना है. एंड उस वक्त दिमाग में एक तो चीजें समझ में आनी शुरू हुई. सबसे पहली चीज ये समझ में आनी शुरू हुई कि भैया यू कैनॉट बी रनिंग आफ्टर कि इसकी इतनी सीटीसी है, ये इसका कंपनी का ब्रांड है. यू हैव टू फर्स्ट फिगर आउट कि तुम क्या हो, तुम कौन हो. ओके, आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड, व्हाट इज आवर पर्सनालिटी? Precisely my question. The only thing is this question came to me 10 to 12 years after I started working. And till then, see होता क्या है आजकल की डेट में या पहले भी, by the time you start answering this question, if you've already reached a later stage, तो आपकी जिंदगी की कुछ जिम्मेवारियां बढ़ चुकी होती हैं. You become you have a spouse, you have a family, बच्चे भी हो गए कई बार, EMIs बढ़ गए, गाड़ी का EMI हो गया, घर का EMI हो गया. आजकल everybody wants to live their life on EMIs, which is nothing but your future earnings have been entered into present value. So even if you start figuring things out, it becomes very difficult to take decisions to move away from it at that time. So in any case, the fortunate thing was that because of the fact that I had this heart attack, it became a little easier for me to take more fundamental decisions because मेरे पास बैठ के सोचने का टाइम था और अपनी ट्रैजेक्टरी को भी चेंज करने का टाइम था. सो वन थिंग दैट आई रियलाइज्ड इज, एंड ये जो मैं आज की डेट में आपसे शेयर करने जा रहा हूं, इस मॉडल को मैंने नाम दिया है, इस फ्रेमवर्क को नाम मैंने दिया है ट्रेजोनेंस का. ट्रेजोनेंस मेरी कंपनी का भी नाम है और ट्रेजोनेंस is nothing but what I call transformational resonance. So the last piece in this is, I said it's a thrill, skill, drill, will model, right? So thrill means understanding what am I passionate about. Skill means understanding what is it that I am naturally, spontaneously, and effortlessly good at. Drill is to find a job, to find that work in which I can align both of them. Because I know that when this alignment happens, my joy resonates. I get a sense of meaning in my life. That is why I call it transformational resonance. And when this happens, I believe what reveals to you is actually the divine will or the purpose of your life. So what I find is, instead of trying to answer this question by starting from what's the purpose of my life, if you can figure out what is it that I am passionate about, if you can figure out what is it that I am good at, naturally, spontaneously and effortlessly good at, and if I can combine this into my vocation or profession, मुझे अपने आप अपनी विल समझ आ जाएगी यार, वो डिवाइन विल है क्या. मुझे ये लगता है कि जब हम लोग किसी भी नौकरी में ये बेसिक क्राइटेरिया लेके घुसते हैं कि भैया तनख्वाह कितनी है, ब्रांड क्या है, हम अपने बारे में नहीं सोचते हैं कि मेरे लिए बेस्ट क्या होगा. We become trapped employees. And when you become a trapped employee, then the organization is not buzzing with energy. Then the organization is buzzing with negative entropy. स्टार्टअप भी अगर मैं हूं और अगर मैंने गलत डिसीजन लेके निकल जाना अलग चीज है, लेकिन आदमी को यह भी कम से कम आत्मबोध तो होना चाहिए ना, दैट आई what is the reason why I'm wanting to be an entrepreneur. It can't be as simple as saying I don't want to report to anybody. It still has to be based on my passion and my proficiency.
मैंने बाय द वे थ्रिल स्किल ड्रिल को, जैसे हमारे कॉटलर के 4 Ps होते हैं मार्केटिंग के, कई लोगों ने सुने होंगे, एमबीए में ज्यादा बात करते हैं, तो मैंने इसको 4 Ps में भी इस फ्रेमवर्क को कर दिया कि भाई P इज फॉर पैशन, कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर योर पैशन, सेकेंड इज डिस्कवर योर कोर प्रोफिशिएंसी, combine these two into a profession, and what reveals to you is the purpose of your life. You have to start observing yourself more closely over the next 1 or 2 years to say, yeah, what is it that I'm really good at? Please remember that opportunities will be limited right now, है ना? तो इसलिए to know what you're really good at शायद पता ना भी चले और शायद पता चल भी जाए, बट जब तक ये मंत्रा समझ में आ जाता है तो इनिशियल स्टेजेस पे तो यू आर यंग, यू कैन टेक रिस्क, पूरी तरह से समझ नहीं भी आया तो कुछ भी कर लो, स्टार्टअप भी कर लो, कुछ भी कर लो, एटलीस्ट यू आर नॉट मैरिड, एटलीस्ट यू डोंट हैव फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस अप टू अ पॉइंट, है ना? तो यू हैव एटलीस्ट द फर्स्ट 2 to 5 years of your life when you can do whatever experimentation you like, if you're focused on understanding what is the drill that will suit me best, experiment. तो फॉर एग्जाम्पल थ्रिल और स्किल अगर समझ में आया तो ड्रिल की कुछ ऑप्शन समझ में आएंगी, यार अगर मेरा ये पैशन है, अगर मेरी ये प्रोफिशिएंसी है, तो जैसे मैंने कहा कि भैया टीचिंग ट्रेनिंग मेरे लिए सही है, एक स्टेज पे 10 साल के बाद मैंने ये भी सोचा यार मैं तो एक हॉस्पिटल का सीईओ बन सकता हूं, क्योंकि यू नो लोगों के साथ मेरे किसी तरीके से मदद करना भी मुझे समझ में आया कि मेरा एक सेंस ऑफ पैशन है, पर नहीं बन पाया बिकॉज इंडस्ट्री नॉलेज ही नहीं थी। तो मैंने एक्चुअली मूलचंद के सीईओ के लिए अप्लाई भी किया था, बट मैं पहले राउंड में ही बाहर हो गया बिकॉज दे सेड यू हैव नो इंडस्ट्री नॉलेज। सो इट्स नॉट दैट द ड्रिल दैट यू आर सीकिंग will always be something that you can get, but at least you start to think creatively based on some basic knowledge about your own self. So this is to me the core. मैंने ये realize किया है कि we all have a job, we have a career and we have a calling. इन तीन के बीच में क्या फर्क है, we must understand. जॉब जो है वो हम अपने हैंड से करते हैं ताकि हमें पैसा मिले, करियर जो है उसमें हमारा हैंड और हेड इन्वॉल्व होता है ताकि हमें पैसे के साथ साथ एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट भी मिले, है ना? सो व्हाट इज कॉलिंग? कॉलिंग वो होती है जिसमें हमारा हैंड और हेड और हार्ट तीनों इन्वॉल्व होते हैं, उसमें हमारी लाइफ की फुलफिलमेंट और मीनिंग हमें बहुत ज्यादा मिलती है। एंड आई कैन टेल यू वन थिंग, जब हमें मीनिंग मिलना शुरू हो जाता है ना लाइफ में, कई बार मनी की अहमियत भी कम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मनी नहीं मिलती। I mean, in today's date, if I am in the consulting profession, I have the ability to earn up to 2 lakhs a day. Okay. I don't want to work more than a few days a month here. I want to do work which gives me satisfaction. तो वो भी काम मुझे satisfaction देता है, और प्रो बोनो काम करना, फॉर एग्जाम्पल इस सेशन का कोई चार्ज तो नहीं है ना। तो आप समझ सकते हो कि जो बंदा 2 लाख अगर 10 घंटे के कमा सकता है तो 1 घंटे की उसकी क्या वैल्यू होगी। तो I like to do this work, I enjoy doing this, I enjoy these interactions. पैसे की वो अहमियत नहीं रही मेरी जिंदगी में, बिकॉज मेरी जिंदगी में मीनिंग और फुलफिलमेंट है। नीड्स अपने आप कम हो जाती हैं जब इंसान इस पाथ पे चलता है। तो दिस इज रियली व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद ईच वन ऑफ यू टुडे, कि अगर कुछ खोज करनी है तो ये खोज का आपका डायरेक्शन है, इसमें आप अगर खोज करें। सो व्हाट इज माय आंसर टू यू? माय आंसर इज, देखो रिस्क की प्रोपेंसिटी, मेरी रिस्क की प्रोपेंसिटी 33-34 की उम्र में क्यों आई? क्योंकि मुझे जिंदगी की एक बहुत बड़ी मार पड़ी। हार्ट अटैक इज अ बिग मार ना। तो जब जिंदगी की मार पड़ी तो अपनी ऑर्बिट शिफ्ट करने के लिए आदमी रिस्क एपेटाइट उसका बढ़ गया। लेकिन लो रिस्क में इस वक्त आपका लो रिस्क है ना, बिकॉज ना शादी हुई है, ना कोई उस इनकम से बहुत ज्यादा कुछ लेना देना है। अगर किसी आदमी के पेरेंट्स इतनी बुरी हालत में हैं कि भैया उनको बहुत हाई डिपेंडेंस है, दैट माय सन शुड इमीडिएटली स्टार्ट अर्निंग अ कपल ऑफ लैक्स अ मंथ, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी
कई बार लाइफ का कॉन्टेक्स्ट ऐसा होता है कि मेरा रिस्क एपेटाइट कम है। भगवान की दया से हम लोगों की जो जनरेशन है, विच इज द पेरेंट्स ऑफ योर जनरेशन, वी हैव डन जनरली रीजनेबली वेल फॉर आवरसेल्व्स। सो रिस्क एपेटाइट है आप लोगों की जनरेशन के लिए। तो आई वुड से वो रिस्क अगर पहले 5 साल में नहीं लोगे तो कब लोगे? बिकॉज देन द स्टैक्स आर टॉप्ड अप अगेंस्ट यू ना। तो एंटरप्रेन्योर बनना है, कुछ इंटर्नशिप्स करनी है, कुछ सोचना है, 1 साल का गैप लेके सारी दुनिया घूमना है, अगर obviously affordability is a question, right? We have to be real about it, but this is the time. This is the time. And then I come to the parents question. देखो ऐसा है, पेरेंट्स का क्वेश्चन एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है आंसर करने का। मेरे लिए ब्लेसिंग ये थी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, लेकिन मेरे फादर की मेरे से बहुत एक्सपेक्टेशंस थी कि वॉक द बीटन पाथ। सो आई स्टार्टेड वॉकिंग द बीटन पाथ, but because of my experience I have no such expectations from my daughter. I have only one daughter who's now 26 years old. तो कई बार पेरेंट्स के जो parents try to live their dreams through the child, and the only thing that you can do with parents is, वो 3 Idiots में याद है जबकि वो बंदा कहता है, I don't know, most of you would have seen 3 Idiots, but that guy tells his father कि मुझे इस बात से कुछ नहीं लेना देना कि शर्मा जी क्या कहेंगे, क्योंकि शर्मा जी ने जो है ना मेरे लिए एसी नहीं लगवाया था अपने आप को गर्मी में होकर के। सो यू हैव टू ऑब्वियसली हैव अ वेरी ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन विद योर पेरेंट्स एंड saying that this is really what I am seeking, this is really what I am wanting. Now, if your parents are totally unreasonable, then you have very difficult choices in front of you. And there are no easy answers, right? या तो पेरेंट्स को मेरे से मिलवा दो ऐसा सेशन में उनके लिए भी ले लूं। But all I can tell you is that मैंने practically, in some cases, one person who I helped, he was pursuing IT because of a pressure from his mother. Father उसके जिंदा नहीं थे। मेरे से बात करके, he had an interest in being a photographer. So I got him in touch with a person who was one of India's leading photographers, and he mentored this boy. And today he is one of the commercial photographers, and now he's gone to the next phase of UI UX designing. तो अब वो इंडिया में है भी नहीं, स्वीडन में है। अब उसकी माँ बहुत खुश है। He is 35 years old. But जब वो 22 साल का था, 23 साल का था, he used to be in a music band, छुड़वा दिया उससे कि भैया आईटी में घुसो, आईटी प्रोफेशन है। मेरे से बात करने के बाद शुरू में उसकी माँ ने मुझे बहुत गालियां दी, यार मैंने तो तुम्हारे पास ज्ञान के लिए भेजा था और तुमने उसको किसी और रास्ते पे लगा दिया। आज उसकी माँ खुश है, ऐसा क्यों? So we have to understand that sometimes, time only heals certain wounds and brings a broader understanding. But the real lesson is to try and pursue that. And I think एक सवाल ये पूछा गया था options का, कि मुझे ये इन options का information deficit है। What I encourage people to do is, there are enough mentors out there. One of the things that I do as a part of my mentoring is, I try and help connect people to people. कि भाई अगर तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन डेफिसिट है कुछ एरियाज का, आजकल लिंक्डइन पे कितने लोगों के बारे में तुम्हें इंफॉर्मेशन है? कैन यू बी बोल्ड इनफ टू रीच आउट टू देम जस्ट द वे आई रीच्ड आउट टू मिस्टर पवार विदाउट मिस्टर पवार नोइंग मी? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? जवाब नहीं आएगा ना। लेकिन लिंक्डइन पे अगर किसी को इन्विटेशन भेजना है तो खाली इन्विटेशन मत भेजो, बिकॉज लिंक्डइन में ये ऑप्शन होती है दैट you can customize your invitation request, right? Write in that as to why you want to connect. Don't just broadly ask for connection. दिल से पता नहीं यार कोई IIT का ठुल्ला जो है वो मेरे से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, मैं क्यों करूं? तो you also have to do it in a way that people find it compelling. So that would be really my answer. Yeah. So my first question to you is, even the fact that you have arrived at just these 4 options, I would like to question that. Saying why only these 4 options? How have you arrived at them? बाकी ये है कि किसी भी प्रोसेस से अगर आप इन ऑप्शंस के पास पहुंचते हो और आप कहते हो यार मेरे पास एक ऑप्शन है लेने के लिए, तो फिर ट्राई करे बिना तो पता ही नहीं चलेगा ना दोस्त। बिकॉज द रियल प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग ना। सो वॉक दैट पाथ,
The only thing is don't be impatient with that path, because what you discover in the first 3 months and what you discover in 1 year can be quite different. So don't just run away from something कि यार ये तो 3 महीने में मजा नहीं आ रहा. I think that's important for you to understand. Yes, I did run away from from working after IIT. कि यार ये तो मेरे को ये शॉप फ्लोर की जिंदगी है. I ran away. I must confess. I don't know if I had stayed with that for a year, would I have enjoyed it or not. तो लेकिन पहली टेंडेंसी ये होती है भाग जाओ. So I would say कि अगर चूज किया भी है, stick it out a little bit. कम से कम नहीं तो 1 साल तो रहो उसमें, दब के रहो. मार खानी है मार खाओ, बट ठोक बजा के उसमें भी देख लो. because देखो लाइफ ऑलवेज टीचेस यू irrespective of what you are doing. And all I would say is till you can do what you love what you do. That's a very important element of life as well. Because कोई भी चीज जो है लाइफ में कोइंसिडेंस नहीं होती है यार, कहीं ना कहीं वो एक बड़ा हाथ होता है. मतलब आई एम अ बिलीवर इन द डिवाइन. तो वो जो अनुभव आपके सामने दिया जा रहा है वो ऐसे ही नहीं आया है, उससे कुछ ना कुछ सीख तो मिलनी है. तो बी ऑन द लुकआउट फॉर दैट सीख and enjoy that journey till you can. So love what you do till you can do what you love. When I joined Airtel in 2004, which is another 9 years after I had worked in IQL, I worked my guts off again. But I think a few things that I didn't compromise on. I still compromised on my health, by the way. I wasn't eating right. ये चीजें मेरी जिंदगी में पिछले 2 साल में ही आई हैं कि यार फिजिकल हेल्थ पे ज्यादा ध्यान रखो. कि I was always overweight. तो मेरे लिए और भी ये जरूरी है. My mother was always a diabetic and a heart patient. तो मुझे वो ख्याल रखना चाहिए था. आज की डेट में वो मेरा ख्याल बहुत ज्यादा है, बिकॉज मैं कोविड में 1 महीने I was in the hospital. 3 weeks I was in the ICU. I almost died. तो वही मैं कहता हूं ना कि फिर भगवान जो है वो दूसरी मार मारता है अगर पहली मार से नहीं समझ आए तो. लेकिन नटशल में मैंने ये रियलाइज किया है कि अपनी फिजिकल वेलबींग, अपनी रिलेशनशिप्स जो हैं कुछ दोस्तों की, ये बहुत ज्यादा मायने रखती हैं. एंड आज की डेट में आई एम डेफिनेटली ट्राइंग टू गिव देम एज मच वेटेज इफ नॉट मोर देन द नंबर ऑफ आवर्स. But fact of life is that when you have that much energy in your initial stages, you do get sucked into it. So if there is anything I can tell you today is यार जितना उन बॉल्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हो. देयर आर इनफ एग्जांपल्स गिवन कि हमारी जिंदगी में 5 बॉल्स हैं. रिलेशनशिप की बॉल है, फिजिकल हेल्थ की बॉल है, पैसा कमाने की प्रोफेशनल बॉल है. ऑल दीज 5 बॉल्स आर योर्स यार. एंड दीज आर एक्चुअली ग्लास बॉल्स. गिरेगी तो टूट जाएगी. So you have to learn the art of being a good juggler with all the balls at the same time. But ये ज्ञान लगता है, जब तक आदमी खुद फेस नहीं करता तो बड़ा मुश्किल है इस बात को समझना. फिजिकल, इमोशनल, मेंटल हेल्थ को बरकरार रखने के लिए टाइम अपने लिए क्रिएट करना मिशन क्रिटिकल है. और रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करने के लिए उन क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप एंड रिलेशनशिप. आज की डेट में मेरे बस टोटल 5 कोर दोस्त हैं, other than my family. 5 core friends. One of them is from my school, 3 of them are from my IIT, and 1 of them is beyond the IIT. Okay? ये 5 दोस्त के साथ मैं कुछ भी कर लूं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता. इनसे फोन पे बात हो जाएगी, कुछ हो जाएगी, whatever else. Because there is जब भी मुलाकात हो सकती है तो मतलब एक दूसरे को गालियां निकालेंगे, लड़ेंगे, जो भी करेंगे. But that relationship that you have and investing in that relationship actually keeps you healthy. देखिए स्ट्रेस हमारी जिंदगी में मतलब there are 5 factors. I just want to tell you very clearly and quickly. One is physical health and physical stress. Manage it. Second is emotional health, emotional stress. Manage it. Emotional stress को मैं manage करता हूं by being grateful. मेरी जिंदगी में जो भी होता है I find reasons for being grateful for it. हार्ट अटैक हुआ, हाउ एम आई ग्रेटफुल फॉर इट. अदरवाइज हम वी आर कंप्लेनिंग ऑल आवर लाइफ. उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे, उसके पास मेरे से ज्यादा पैसा, उसके बाद मेरे से ज्यादा गाड़ी, उसके बाद उसका सीजीपीए मेरे सीजीपीए से ज्यादा.
ये कंपैरिजन हमारी जान लेता है. How can I bring gratitude? That is what brings me emotional health. Mental health is practicing some moments of silence, mindfulness, meditation, kuch bhi keh lo. Relational health is having good quality of relationships with whom I can spend time. And last is spiritual health and well-being, which is by aligning my life and its priorities around my thrill and my skill. When I do that, I feel more aligned. मेरा अंदर और बाहर ज़्यादा aligned है. मेरा स्वभाव और मेरा स्वधर्म aligned है. So I feel more at peace.